morning students. Welcome to our science class. I hope you all are fit and fine. In today's lecture, we will study one new lesson number, that is lesson number 2, My Body. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? My Body. Students, in your previous classes you have studied about your body. So our body is made up of different organs. Our body is made up of different organs. These organs performs different function. ये organs जो है different वो अपना अलग different work करते हैं. जैसे कि eyes है, so the eyes work क्या है eyes का? To see. Okay? Hands का to write. Okay, so our different organs have different functions to do. Okay, so our body is a living machine. Yes. Okay. Now these organs are divided into two parts. ये organs two parts में divided हैं. So which are they? First is internal organ and second is external organ. Now students, what is internal and what is external? It is given in your book on page number 190 that the parts that are on the outer side of the body. Body के outside जो भी parts हैं, such parts are called external organs, and those organs which are inside our body are called internal organs. So students, can you name some organs which are internal and which are external? Okay, let's see. Which are internal? Internal organs are such that we cannot see. They are inside in our body. So which are they? They are stomach. Okay. Kidney. Heart. Brain. These are organs which are inside our body, so these are called internal organs which we cannot see. Okay, now external organs. So students, can you name some external organs which are external, which we see, which are outside in our body? Okay, which are the outside parts of our body? Which are they? These. This is a hand. So hand is an external organ. Okay, then legs, eyes, arms. Okay, so many. Okay, I have written only 4 names, but there are many organs. Try to write it 2-3 more. Okay, now next, these different organs. Now these different organs comes together. Now this what happened? हमने देखा कि external organs ये, internal organs ये. But now what happened? Our body is a living machine. So machine requires some important functions to be performed. So to perform that functions, these organs combine together. They come together to perform a common function. जो organs एक साथ ग्रुप होती है, वो क्यों ग्रुप होती है? ताकि वो एक प्रॉपर एक कॉमन फंक्शन जिसका वर्क थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, वो एक ग्रुप बनाते हैं. क्यों ग्रुप बनाते हैं? टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो ये ऑर्गन्स का ग्रुप बना, दैट वर्क्स टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. Okay, organ system क्या है? Group of different organs that perform a common function together. Okay, so this is called organ system. Okay, now how many organ systems are there in our body? And how do they perform? In today's video, we will study this organ system, which are they and how it took place in our body and how they are functioning. Okay, first is
digestive system. Okay. Second one is, which is second system? Second system is respiratory system. Respiratory system. Okay. Now third system is circulatory system. Fourth system is muscular system. Okay, students. Now fifth one is nervous system. And sixth, which is sixth system, students, can you name it? Digestive system, respiratory, circulatory, muscular system, then nervous system. Sixth is, yes, anyone? Excretory system. Okay, system is skeletal system. So students, these are 7 systems. First one is digestive system, second respiratory system, third circulatory system, muscular system, nervous system, excretory system and skeletal system. These are 7 systems. Okay. First of all, एक जो सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन्स का ग्रुप बना के एक सिस्टम बनी है. ओके. So first of all, in this lecture we will study digestive system and how many organs are there in digestive system, how they work, how they perform differently their function. Let us study digestive system. Now students, let's study digestive system. This digestive system is made up of group of different organs, so the digestion process is easily carried out. These all different organs have different functions in that, so that the group of all organs makes the digestive system easy. Okay, this system starts with the mouth. Okay, when we eat something, we eat directly in the mouth. Then food pipe, liver, pancreas, stomach, small intestine, large intestine and then anus. So students, let us study how this all organs perform together. First of all, see, this is the mouth. This is a food pipe which connects with the mouth to the stomach. This is called liver. This is the pancreas. Here you can see it is a small intestine. This is the large intestine and finally anus. Okay, let us study this different organs, how they combine and work together and thus digestive system is formed. Let us study this. Now let's go through from the book My Body. Students, here different pictures are given to you. The whole body with the nervous system. Here the digestive system is given to you. Here respiratory system, and this how does the kidney functions. Okay, now this is the nervous system. Okay, let's solve the fill in the blanks. Here the food that I eat gets digested. जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. वो कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? इट इज डन थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम.
Okay, digestive system helps the food to get digested. Okay, second, the air I breathe goes into my dash. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं नोज से, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? थ्रू दिस विंड पाइप, इट गोज थ्रू दी इनटू दी लंग्स. ओके. थर्ड इज द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम. जो ये हार्ट है वो कौन सी सिस्टम का पार्ट है? यस, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्क्यूलेटरी सिस्टम. हार्ट इज द पार्ट ऑफ द circulatory system. Okay, now the kidneys remove dash from my body. किडनीज किस में हेल्प करती है? क्या रिमूव करती है हमारे बॉडी में से? वेस्ट. इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज The dash controls all functions of my body. ऐसा क्या है जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल करता है? दैट इज नर्वस. नर्वस सिस्टम है वो हमारे क्या करती है? पूरी बॉडी में जो भी हम लोग फंक्शन करते हैं वो सब कंट्रोल करती है. ओके, वी विल स्टडी दिस ऑल in this chapter. Okay, now let's recall. Here the parts that are on the outer side of the body. Body के बाहर की साइड जो parts हैं that are called external parts. Okay, these parts are कौन से हैं? वो eyes, nose, arms, legs are called external parts. Okay, there are many parts which are inside the body. बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में इंटरनल अंदर होते हैं बॉडी के. वो कौन से हैं? एंड दिस इनसाइड पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स. ओके, दीज पार्ट्स आर हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी. ओके, ये सब क्या है? इंटरनल पार्ट्स हैं जो हम बॉडी के इनसाइड होते हैं, सो हम उसको देख नहीं पाते. Okay, now let's study this chapter. Let's begin. Okay, here we have seen the internal and external parts. Now let's start. You require, हमारी बॉडी में क्या हमें चाहिए? You need to have food, water and air to stay alive. जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वी नीड फूड, वाटर एंड एयर. दीज आर द बेसिक नीड्स. यू गेट दिस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. और ये हमें कहाँ मिलता है? हमारी सराउंडिंग्स में से हमें ये सारे चीज़ें मिल जाती है. ओके, द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? ऑर्गन सिस्टम होती है. ओके, विच वर्क्स टुगेदर टू कीप यू अलाइव. हमें अलाइव रहने के लिए फूड, वाटर, एयर चाहिए. बट क्या ये इनफ है? नहीं. इसके साथ हमें क्या चाहिए? हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होती है वो वर्क करती है साथ में मिलके, ताकि हम अलाइव रह पाए. ओके, सो दिस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ये जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में आर कौन सी है ये सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम? तो दीज आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. ओके, चलो. नाउ ईच ऑफ ऑर्गन सिस्टम मतलब अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, स्केलेटल, मस्कुलर, वो हर एक सिस्टम का परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक सिस्टम का एक अलग फंक्शन होता है. ओके, नाउ हियर द डायग्राम इज गिवन टू यू. यू कैन सी all the veins,
heart systems, organs are there. Okay, you can see here various organ system form a human body. सारे स्ट्रक्चर, सारी सिस्टम, ऑर्गन्स को सबको साथ में मिला के क्या बनता है? ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी बनती है. ओके, दिस all works together to make a human alive, and this human body works. Okay, now an organ system is a group of organ. अभी organ system क्या है? It's a group of organ. किसी एक organ नहीं, but there are many organs to work together. Okay, each organ in the system performs a specific function. Okay, इसमें क्या है? हर एक ऑर्गन एक अपना स्पेसिफिक उसको टास्क अलॉट होता है, वो टास्क वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करती है. ऐसी बहुत सारी ऑर्गन्स जो अपना अपना काम करती है, उस सबको एक ग्रुप बना के क्या बनती है? एक ऑर्गन की सिस्टम बनती है. ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ द फूड you eat and the water you drink goes into your digestive system. जो हम फूड खाते हैं एंड वाटर ड्रिंक करते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? हमारी कौन से सिस्टम में जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में. ओके, सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स. क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स थ्रू विच food and water passes. So digestive system क्या है? एक series of organs. Organs एक one after one उस organs का arrangement है, और हर एक organ का अपना अपना एक task है. तो first organ अपना task perform करके वो कहाँ भेजेंगे? सेकेंड ऑर्गन. देन सेकेंड ऑर्गन का काम स्टार्ट होगा, वो अपना काम कंप्लीट करके, वो प्रोसेस अपनी कंप्लीट करके थर्ड ऑर्गन के पास भेजेंगे. ओके, सो दिस आर द सीरीज ऑफ ऑर्गन्स थ्रू विच उससे क्या होता है? हमारा फूड एंड वाटर पास होता है. क्लियर? चलो नाउ फूड यू ईट हैज़ मैनी न्यूट्रिएंट्स. आप सब जानते हो हम जो फूड खाते हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. यस, कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. योर बॉडी कैन नॉट यूज मोस्ट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अनलेस दे आर चेंज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस. हमारी बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है. ओके, सो वी हैव टू चेंज them into a simple substance. So digestion of food से क्या होता है? It breaks down useful substance in the food into a small substance. जो हम फूड खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस से क्या होता है? वो फूड स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं. ओके, देन डाइजेशन ऑफ फूड इज अ स्लो प्रोसेस. क्या है डाइजेशन ऑफ फूड? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट. डाइजेशन में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स फ्यू आवर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस. नाउ लेट्स स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल एंड द ऑर्गन्स that are combined in digestive system. Okay, let's study. Here, the mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine and large intestine are the organs of human digestive system. Just हमने वीडियो में वो चार्ट देखा जिसमें ये सारी organs आपको लिस्ट दिखाई गई है. Okay, these all organs form a human digestive system. Okay, now let us study these organs in detail and what are the works done by these organs. Now, mouth. You take in food in your mouth. हम food कहाँ लेते हैं? तो first of all mouth में. The mouth has teeth and tongue. माउथ में क्या होता है? टीथ एंड टंग. सो
there is an important role of teeth and tongue, okay, in our this process. Let's study it. Now the food is ground into small pieces by the teeth during chewing. हम फूड जो माउथ में डालते हैं उसको टीथ से स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देते हैं उस फूड के. यस, वो प्रोसेस कब होती है? जब हम उस फूड को चबाते हैं. चबाना मीन्स च्यूइंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ओके, नाउ टीथ. Now students, teeth are of, let's study teeth. When you were born, you did not have any teeth. जब आप बॉर्न हुए थे तब आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं था. When you were 6 to 8 months old, जब आपको बॉर्न हुए 6 to 8 months हो गए, you had your first tooth. तब आपको देखो छोटे छोटे टूथ आने लगे. बाय योर थर्ड बर्थ, यानी कि आप 3 years के हो गए, यू हैड 20 टीथ एंड दीज वेर योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. जब आप 3 years के होते हो तब आपका 20 टीथ आपके आ जाते हैं. दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ एंड दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. Okay, okay, now अब पूछो what is milk teeth, तो you are able to answer what is milk teeth. Okay, by your 13th birthday, ना भी आपका 13 years के हो गए, your all milk teeth will fall out. A new set of teeth will grow in their place. This set will be your permanent teeth. क्या बोला है टीथ में? कि जब हम बोर्न होते हैं तब हमारे पास एक भी टीथ नहीं होता है, बट एज एंड व्हेन टाइम पासेस हम 8 months के हो जाते हैं तब हमारे 2 से 3 टीथ आते हैं. फिर हम कब आते हैं हमारे फर्स्ट सेट? एक सेट कब बनता है टीथ का? 20. जब हम 3 years के हो जाते हैं तब. फिर जब वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे मिल्क टीथ आ गए. और मिल्क टीथ स्टूडेंट्स, जब हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ये मिल्क टीथ सारे टूटते जाते हैं. ओके, देन द न्यू सेट ऑफ टीथ विल ग्रो. उनकी जगह पे न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो होते हैं और जो हम न्यू टीथ आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं. ओके, now let's study the types of teeth. Types of teeth. Okay, here this is the structure of teeth. You can see here the structure of teeth is given to you here. Let's study this. Permanent teeth are of 4 types. जो permanent teeth हमें आते हैं वो कितने types के होते हैं? 4 types के होते हैं. Okay, now incisors. ओके, इंसाइसर 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं हमारे टीथ. इंसाइसर्स, कैनियंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. सो इंसाइसर्स जो ये फर्स्ट 2 टीथ्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसाइसर्स. दिस इंसाइसर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ. ओके, कट करने के लिए और बाइट करने के लिए जो टीथ हम यूज करते हैं वो उन टीथ्स को बोलते हैं इंसाइसर्स. ओके, सेकंड इज कैनियंस. कैनियंस यू कैन सी हियर दिस. देखो ये जो कैनियंस यानी टीयरिंग के लिए यूज होता है. ओके, टीथ तो उसका शेप ऐसे वी में होता है, आप देख सकते हो दोनों साइड. ठीक है, जो फर्स्ट 4 होते हैं वो इंसाइसर्स. Then second, these 2 are called canyon. ठीक है, now these canyons are used for tearing. कुछ चीज फाड़नी हो, ओके, टीथ से टीयर करनी हो, these canyons are used. Next are premolars. Premolars and molars teeth. These 2 are called premolars and these are molars teeth.
Okay, these are used for chewing and grinding teeth. कौन से टीथ हैं? च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग. कुछ चबाना हो, उसको ग्रिंड करना हो, तो कौन से टीथ यूज करते हैं हम लोग? प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. हियर ईच tooth is attached to the jawbone. Each tooth is attached to the jawbone. आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर दिया है टूथ का. ओके, this is the structure of a tooth. Here each tooth is attached to the jawbone. आप ये एक टीथ का स्ट्रक्चर देखो, एक टूथ का. ओके, ये क्या है? एक टूथ का स्ट्रक्चर है, जो कि हर एक टूथ किससे कनेक्टेड है? जॉबोन से. कहाँ है जॉबोन? दिस इज द जॉबोन. जॉबोन से वो हर एक टूथ कनेक्टेड होता है. ओके, नाउ सीमेंटम. सीमेंटम विच इज अ bone like substance. Cementum is a bone like substance fixes each tooth firmly to the jawbone. जॉबोन के साथ हर एक टूथ को फिक्स करने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम. ओके, तो सीमेंटम हम यूज करते हैं किसके लिए? टू फिक्स ईच टूथ, हर एक टूथ को जॉबोन के साथ फिक्सली, फर्मली उसके साथ फिक्स करने के लिए एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीमेंटम. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द पार्ट ऑफ द टूथ and the part of a tooth which is seen is called the crown. जो टीथ का जो पार्ट हमें दिखाई देता है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, जो टीथ का पार्ट आपको दिखाई देता है, इंटरनल टीथ जो अंदर है, इतना स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, बट जो बाहर है, जो हमें दिख रहा है टीथ का पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रोन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गम्स. Gums surround the tooth and cover the jawbone. Jawbone and jawbone जो गम है वो टीथ को पूरे से कवर कर देती है. गम सराउंड द टूथ एंड कवर द जॉबोन. जॉबोन को पूरा कवर कौन करता है? देखो आपको यहाँ पे दिख रही है जॉबोन्स है. जॉबोन्स को किसने कवर कर लिया? गम ने. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अ हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली बिटवीन द गम. हेल्दी टीथ वो होता है टूथ जो एकदम फर्मली खड़ा रहे, हिले नहीं गम्स के. ओके, देन अ हेल्दी टूथ इज क्लीन. तो हेल्दी टूथ की, व्हाट इज हेल्दी टूथ? विच टूथ वी कॉल हेल्दी? द हेल्दी टूथ इज क्लीन, स्ट्रॉन्ग एंड हैज हेल्दी गम्स. गम्स कैसे होने चाहिए? हेल्दी. अगर ये हेल्दी होंगे तो हमारे जॉ बोन जो इंटरनल कनेक्ट है वो हिलेंगे नहीं और हमारे टूथ भी टूटेगा नहीं. ओके, सो स्ट्रॉन्ग हेल्दी टीथ हेल्प यू. स्ट्रॉन्ग हेल्दी टीथ कैसे हेल्प करते हैं? चू योर फूड. हम इसीलिए कुछ भी सॉलिड चीज हम लोग अच्छे से ग्रिंड च्यू कर चबा के खा सकते हैं. दे हेल्प यू स्पीक क्लियरली. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इज के टीथ हमें प्रॉपरली क्लियरली स्पीकिंग के लिए भी हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट इज टंग. नेक्स्ट इज tongue. Okay, the tongue is a muscular organ. कैसी है? muscular organ है in the mouth. उसमें मसल होते हैं ताकि हम उसको ट्विस्ट टर्न कैसे भी हम लोग टंग को कर सकते हैं. ओके, वो हमें कैसे हेल्प करती हैं? तो इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड swallowing the food. swallowing means निगलना. Okay, it helps
in chewing and swallowing the food. Taste buds are present on the tongue. Tongue पे क्या present होता है? Taste buds. मतलब कि सेंसिंग टेस्ट ऑफ द फूड कि टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है कि शुगर वाला है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो वो सब हमें कैसे पता चलता है? हमारी ये टेस्ट बर्ड्स से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी टंग पे. ओके, टेस्ट बर्ड्स help you in sensing the different taste of food. डिफरेंट फूड के टेस्ट हमें कैसे पता चलते हैं? ये टेस्ट बर्ड से, जो कि हमारी टंग पे प्रेजेंट होती है. तो कैसा टेस्ट पता चलता है? कि सोर, स्वीट एंड सॉल्टी. ओके, चलो नेक्स्ट. द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा इन द माउथ. हमारे माउथ में टंग और टीथ के अलावा क्या होता है? हमारी सलाइवा होती है, उसके साथ भी फूड मिक्स होता है. सलाइवा इज द वाटरी लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ. व्हाट इज सलाइवा? तो सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड प्रेजेंट. क्या है? लिक्विड है, वाटरी लिक्विड प्रेजेंट इन माउथ, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हमारी थूक. ओके, इट इज अ डाइजेस्टिव जूस. सलाइवा का दूसरा नाम उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ डाइजेस्टिव juice. Chewing helps in mixing saliva in the food. जब हम खाना चबाते हैं, उससे क्या होता है? हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे वो एक जूस, डाइजेस्टिव जूस बन जाता है. वो हमें हेल्प करता है डाइजेस्टिंग में. ओके, नाउ सलाइवा बिगिंस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फूड. जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसका डाइजेशन कहाँ से होता है? सलाइवा से स्टार्ट होता है. ओके, विच इज वाई फूड मस्ट बी च्यूड प्रॉपरली बिफोर इट इज swallowed. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं, मम्मा जनरली आप सबको बोलती है कि आप अच्छे से चबा के खाओ. ओके, डायरेक्ट निगलो नहीं, ताकि वो सलाइवा अच्छे से वो उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको उसके साथ मिक्सअप हो जाए और उसको डाइजेशन में उसकी हेल्प हो. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक. Which is next organ? Stomach. Okay, here from the mouth the food goes down the food pipe. यहाँ पे माउथ में, माउथ का प्रोसेस हमने देखा, टीथ, टंग, सलाइवा. नाउ where does food goes from the mouth? It goes in this food pipe. ये food pipe में फूड चला जाता है. ओके, नाउ दिस फूड पाइप जॉइंस द माउथ एंड द स्टमक. ये जो फूड पाइप है वो किसको जॉइन करती है? हमारी स्टमक को. किसके साथ? माउथ के साथ. ओके, नाउ द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स. हमारा फूड कहाँ पे रहता है थोड़े आवर्स के लिए? स्टमक में. ओके, नाउ द स्टमक चर्न्स food and changes it into a fine paste. Now स्टमक क्या करती है? वो चर्न्स फूड को थोड़ी आवर्स अपने पास रखती है, उसको चर्न करती है एंड चेंजेस इट इनटू अ फाइन पेस्ट. अच्छे से वो पेस्ट बन जाए तब तक उसको वहाँ रखती है. नाउ द स्टमक एड्स डाइजेस्टिव जूस एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ स्टमक उस फूड में क्या ऐड करती है? डाइजेस्टिव जूस एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. ओके, देन द डाइजेशन ऑफ मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बिगिंस इन द स्टमक. स्टमक में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? कौन सी? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक में स्टार्ट होती है. फ्रॉम द स्टमक द
पार्टली डाइजेस्टेड फूड, अभी प्रॉपर फूड का फुल डाइजेशन नहीं हुआ है बट प्रॉपर आधा हो गया है, पार्टली डाइजेस्ट हो गया है. देन दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड पेस्ट passes into a small intestine. जो ये स्टमक में से आधा डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ लेट्स सी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. मेन ऑर्गन कौन सी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब. आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर. हियर यू कैन सी these are the long and narrow tubes. This is a small intestine. Okay, what does it perform, how does it performs its function? Okay, let's see. In the small intestine some more digestive juices mix with the food. हमने देखा स्टमक में डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो रहे हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिक्स हो रहा है. फर्दर जो फूड हुआ पार्टली उसकी पेस्ट बन गई बट कंप्लीटली वो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, वो स्टमक में से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसमें थोड़े और डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं फूड के साथ एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन्स. और ये जो जूस डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड के साथ मिक्स होगा वो ये जूस कहाँ से बन के आते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन से बन के आता है ये जूस, जो कि लीवर एंड पेंक्रियास दो ऑर्गन है, उसमें से ये डाइजेस्टिव जूस बन के आता है. कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, द जूस हेल्प इन डाइजेस्टिंग. ये जो जूस लीवर और पेंक्रियास में से बन के आता है वो किस में हेल्प करता है, तो भाई डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, उनको डाइजेस्टिंग प्रॉपर हो उनकी डाइजेस्टिंग उसके लिए ये जूस हेल्प करता है. ओके, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड पास इनटू द ब्लड. उसमें से जो सब्सटेंस बनता है सिंपल एकदम लिक्विड फॉर्म में वो हम कहाँ पास करते हैं, ब्लड में. ओके, देन अनदर पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. A large portion of a food that we eat remains undigested. हम ऐसा बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं जो आधे से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है. वो कैसा फूड होता है, अनडाइजेस्टेड, जो कि यूजफुल हमारी बॉडी के लिए नहीं होता. द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. जो यूजफुल सब्सटेंस है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कहाँ पास होंगे, ब्लड में. जो लेफ्ट आउट अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पास होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में. इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकन बैक इनटू द ब्लड. जो फूड अनडाइजेस्टेड है, नाउ जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड उसमें से क्या, उसमें से जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, टेकन बैक टू दी ब्लड. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज द फीसियस थ्रू द एनस. ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्ट्रक्चर में. ओके, माउथ में से फूड जाएगा फूड पाइप में, देन स्टमक में वो थोड़े फ्यू आवर्स के लिए वहाँ पे रहेगा एंड डाइजेस्टिव जूस एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होके उसकी पेस्ट बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर और पेंक्रियास में से जो डाइजेस्टिव जूस आएगा उसके साथ वो मिक्स होंगे और
उसमें से जो पेस्ट आएगी उसमें डाइजेस्टिव फूड स्मॉल सब्सटेंस में बन जाएगा और उसमें यूटिलाइज्ड जो यूजफुल है हमारी बॉडी में से वो हमारे ब्लड को पास ऑन किया जाएगा। एंड जो वेस्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में आके जो भी वाटर है उसमें प्रेजेंट वो वाटर अगेन हमारे ब्लड को दे देंगे और जो कि नाउ वेस्ट जो हमारे बॉडी में निकला लार्ज इंटेस्टाइन में वो हमारे एनस के थ्रू बाहर बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, this is your digestive system and these are the organs which help to digest the food properly. Okay students? Students, I hope now the digestive system is clear to you and the functions of digestive system is clear to you. Go through it and try to draw this diagram in your chart paper. Okay students? Bye.